lion is the king of the jungle, how can he be the king of the jungle? If he's not the biggest, the elephant is probably one of the biggest. He can't be the fastest because that's a cheetah. He can't be the smartest. So he's not the biggest, the fastest, or the smartest. So how does a lion become the king of the jungle? His mentality. That's the only difference of a lion and an elephant. When a lion walks up and sees an elephant, he thinks lunch. An elephant thinks run. And it's all mentality. Because when a male lion walks up, he may be outnumbered by a pack of hyenas, but I'm king of my jungle because of my mentality. What happens when you're a gazelle and you're not being pushed, you're not being prodded, you're not given a reward, nobody's encouraging you? What happens when you're a gazelle and the lion's not chasing you anymore? You stop running. But what happens when you're a lion? When you are a lion, it does not make a difference. You realize that if your family is going to eat, that if that pack of lions is to survive, then you gotta go hunt. A part of being a beast just ain't eating a gazelle. A part of being a beast is the hunts. It's the hunt that they're excited about. They like to see the gazelles run. Then boom, they take off. Because real lions like to hunt. They love the process just as much as they love the prize. And some of y'all just want to score. You don't like the process. You're not in love with the process. A true hunter's goal is not the prize. A true hunter's goal is to hunt. That's what they live for. They live to hunt. They don't just live to catch it. It's the whole process. When you are a true hunter, you don't go by time. You go by the gazelle. When you are a true hunter, you hunt until you get a gazelle, and you don't stop until you get one. And then you get another, and then you get another, and you get another. If you're going to do what you say you're going to do, be what you say you're going to be, you're going to have to lion me out. You a gazelle, you're going to come up short. You a gazelle, you're going to have an average experience. You a student, I need you in lion mode. You an entrepreneur, I need you in lion mode. You try to lose weight, lion mode. You can't do nothing significant in gazelle mode, nothing. Nothing impressive happens in gazelle mode. Nothing happens in run mode, give up mode, quit mode, scared mode, fearful mode, nothing happens. Everything happens in lion mode like I'm coming to get you. यूं तो सूरज सदियों से रोज आता है, लेकिन 30 मार्च 1996 को जब सूरज आया तो सिर्फ नया सवेरा नहीं, उसके साथ नए संकल्पों की एक नई रोशनी भी आई थी। इस रोशनी का नाम था मोदी केयर। ये नन्ही कोपल उसी वट वृक्ष का हिस्सा थी जिसे भारत भूमि पर रोपा था राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने। साल था 1933। तब स्वदेशी जन जन का संकल्प था। आजादी के लड़ाई के उसी दौर में महाराजा ऑफ पटियाला के फाइनेंस मिनिस्टर रहे राय बहादुर गुजरमल मोदी जी भी कुछ खास करना चाहते थे जिससे इस देश और इसके लोगों को फायदा मिले। स्वजन और स्वदेश हित के इसी ख्याल के साथ अपनी जेब में बस ये 400 रुपए और उद्योगों से राष्ट्र निर्माण का इरादा लेकर वो दिल्ली के करीब बेगमाबाद आए। यही बेगमाबाद अब बन गया है आज का मोदी नगर। इसी शहर में उन्होंने 1933 से 1972 के बीच 27 उद्योग लगाकर इसे एक इंडस्ट्रियल टाउन की पहचान दी। आजाद भारत में औद्योगिक विकास, समाज सेवा, शिक्षा में सुधारों जैसे राष्ट्र निर्माण के कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। महान उद्योगपति गुजरमल मोदी जी के कारोबार और राष्ट्र सेवा के संस्कार की विरासत को उनके बाद उनके बड़े बेटे कृष्ण कुमार यानी के मोदी ने संभाला। उन्होंने बदलते दौर में नए भारत के लिए जरूरी नई तकनीकों, सेवाओं और उत्पादों को भारत लाने के विजन के साथ
कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया और मोदी ग्रुप को दुनिया के 120 देशों तक फैलाकर नई बुलंदियों पर पहुंचाया। अपने दादाजी की राष्ट्र निर्माण की सोच ने मोदी परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य पिता के मोदी और मां डॉक्टर बीना मोदी के बेटे समीर मोदी को भी बचपन से ही प्रेरित किया था। उन्हें हमेशा से अपने परिवार की समृद्ध एवं गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का आभास था। इसीलिए 90 के दशक में अमेरिका में पढ़ रहे समीर मोदी ने अपने दादाजी और पिताजी की तरह भारत में ही अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक नया आइडिया सामने रखा। ये आइडिया था भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने का। डायरेक्ट सेलिंग यानी अपने उत्पादों को आम लोगों की संख्या और उनकी शक्ति के इस्तेमाल से बेचना और बदले में उन लोगों को उस मुनाफे का सीधा हिस्सेदार बनाना। समीर मोदी के इस नए आइडिया में दम था और इरादे नेक थे। बस फिर क्या था, छोटे से निवेश, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करने के मंत्र ने देश के आम लोगों की तकदीर बदलनी शुरू कर दी। समीर मोदी मोदी केयर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर्वाधिक भुगतान करने वाले कॉम्पेंसेशन प्लान्स में से एक लेकर आए। साथ ही प्रोडक्ट्स रेंज में इनोवेशन, 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी प्लान लाने जैसे कई बड़े बदलाव किए, जिससे मोदी केयर में लोगों का भरोसा पहले से कई गुना बढ़ गया। आज 14 कैटेगरीज में 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 12,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और देश भर में 55 से ज्यादा मोदी केयर सेंटर्स के नेटवर्क के साथ मोदी केयर देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक है, जिसके साथ 53 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स जुड़े हैं। समीर मोदी देश के आम लोगों को सही मायनों में आजादी दे रहे हैं। आजादी जी भर के कमाने की, आजादी खुलकर जीने की, आजादी अपने हर सपने को पूरा करने की। तो आप भी अब और इंतजार मत कीजिए। मोदी केयर के साथ सपने देखिए और उन्हें सच करने में जुट जाइए।
हम सब अपने जीवन में कैसे महापरिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं आप आमंत्रित करता हूं मिस्टर दिनेश यादव सर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सर। आइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए, और हमारे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आए। तो वी वेलकम यू सर, और मैं ये स्क्रीन आपको हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, गुड मोदीकेयर मॉर्निंग। दोस्तों, मैं दिनेश यादव वाराणसी से हूं, और आज हम, जैसा कि आज आपके बीच में एक मैसेज गया होगा कि हम आज महापरिवर्तन की बात करने जा रहे हैं। वही परिवर्तन जो आज से कुछ साल पहले मैंने किया था, और उसको करने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, वही चीजें आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आने वाला जो 40 से 45 मिनट जो मैं आपका समय लूंगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये जो 40 से 45 मिनट आप दे रहे हैं, उसे प्लीज सीरियसली दीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि निश्चित तौर पे आने वाले 40 से 45 मिनट के बाद आप आज सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमें परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसकी वजह से आज हमारी लाइफ कितनी खुशहाल हो सकती है, आज हम वही बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब पहले तो एक ग्राहक है, हम सब ग्राहक हैं, और मैं आज उसी पे बात करूंगा आपसे कि कैसे हम एक जागरूक ग्राहक बन सकते हैं, और ग्राहक जो हम ऑलरेडी हैं उसमें परिवर्तन लाके कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। इन सब सारी चीजों पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं, आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, और ये आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आज इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों, और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। एक हमारे सर हैं जो कहते हैं, यदि आप जिंदगी में वो चाहते हैं जो आज आपके पास नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा जो आज आप नहीं है। इस बात से आप सहमत होंगे कि निश्चित तौर पे अगर हम वो चाहते हैं जो आज हमारे पास नहीं है, तो हमें वो करना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा जो आज आप नहीं है। और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। और चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, आज इस मोदी केयर की दुनिया में, अपॉर्चुनिटी की दुनिया में आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं पूरे मोदी केयर परिवार की तरफ से जितने भी हमारे नए और पहली बार आज इस परिवर्तन के सेशन में आए हैं, उन सभी दोस्तों का, साथियों का हार्दिक स्वागत है। और चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिस कंपनी के बारे में, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आप बात करने जा रहे हैं, जिसने शुरुआत की, उसके बारे में सबसे पहले बता दें कि ये जो मोदी केयर है क्या। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि साउंड नहीं आ रही है, प्लीज क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज? यस सर, यस सर, क्लियर है जी। तो प्लीज आप अपने साउंड के उसको बढ़ा लें, वॉल्यूम को, अगर नहीं आ रही है तो। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इस लेगेसी की बात करता हूं, जिसने आज से 1933 में, आज से तकरीबन 90 साल पहले, 10, 20, 50 साल दोस्तों पहले नहीं, 90 साल पहले इन्होंने शुरुआत किया था, और जिनका नाम था राय बहादुर गुजरमल मोदी। ये बहुत बड़ी विजनरी थे, और इन्होंने 1933 में इस जो अपने ग्रुप को इन्होंने स्टार्टिंग किया, और 1933 से लेके 72 तक करीब 27 अलग अलग इंडस्ट्रियों में इसको डेवलप किया। उसके बाद इनके बड़े बेटे मिस्टर के मोदी जी ने इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाया, और दुनिया के करीब 120 देशों में इसे फैलाया। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो के मोदी साहब आज हमारे बीच में नहीं है। आज हमारे पास मिसेस बीना मोदी जी हैं, जो एक आइकॉनिक वुमेन लीडर है और चेयरपर्सन है मोदी इंटरप्राइजेज की। ये काफी, अगर हम बात करें तो एक सोशल वर्क में भी बहुत इन्वॉल्व रहती हैं। और इसके बाद इनके बड़े बेटे मिस्टर समीर मोदी जी ने इसे और आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं
तो आज ये फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है मोदी केयर के और कलर बार के। अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने आज इसे इतना आगे बढ़ाया कि दोस्तों आज इनको आप देख रहे होंगे NACS एशिया पैसिफिक कमेटी का इनको चेयरपर्सन बनाया गया। इसके बाद इनको प्रेसिडेंट ऑफ द अगर एशिया पैसिफिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का इनको वो बनाया गया। और आज ये जो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है और ये कोई 2, 4, 5 साल से स्टार्ट नहीं है। आप देख रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी, इनके पास आज जैसे पान विलास, कलर बार, थाई एयरवेज, TCT, मोदी केयर, 24/7, फंडा गोली, इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्री है जो वेल नोन है, जिसे आप जानते होंगे। और आज इस इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों मैं ही नहीं, जो मैं तो आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में जो महानतम लोग हैं, जो विशिष्ट लोग हैं, जिन्हें हम एक अच्छी उससे जानते हैं, इन सब सारे लोगों का विचार है कि इस इंडस्ट्री को लेके आज वो कहाँ सोच रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, बिल गेट्स जैसे लोग, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, PM नरेंद्र मोदी जैसे लोग, बड़े बड़े लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही पॉजिटिव चीजें बोली। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि हम सब यहाँ पे जितने लोग भी हैं, आज जितने लोग पहली बार आए, अगर हम बात करें तो हम सब लोग क्या है, हम ग्राहक हैं और हम एक आम इंसान है, मिडिल क्लास के लोग हैं। क्या आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो बहुत सारे लोगों का हैंड रेज हो रहा है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? बहुत सिंपल चीजों में आज हम आपको बताएंगे कि इसके लिए हमें करना क्या है। अगर यहाँ पे जितने लोग भी हैं, अगर हम लोगों में से जितने लोग में से अगर यहाँ पे उपस्थित है, कितने ऐसे लोग हैं, मैं सारे लोगों को देख रहा हूं, कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह नहाते हैं? तो हम जाहिर सी बात है हम सौंफ लगाते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पेस्ट करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में चाय बनती है? और कितने लोगों का ऐसा घर है जहां पे खाना बनता है? अगर मैं बात करूं तो ऐसा सवाल है कि कोई ना नहीं कर सकता, कपड़े धुलते हैं, हम साफ सफाई होती है हमारे घर में, खेती होती है, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये सब चीजें अगर मैं बात करूं तो हमारे घर में ये जो हम, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर इंसान ये काम करता है और उसके घर में होते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये सब सारे जो जरूरत की चीजें हैं, ये हम कहां से खरीदते हैं? अगर मैं बात करूं तो आज हम किसी जनरल स्टोर से खरीदते हैं, किसी बड़े स्टोर से खरीदते हैं, किसी हमारे बगल में जो कोई परचून की दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है, FMCG की दुकान है, वहां से हम खरीदते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से जो हम सामान ले रहे हैं, तो ये आज नहीं सदियों से ये व्यापार चला आ रहा है और जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। यहां पे क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री होती है और हम हैं कंज्यूमर। ये क्या होता है कि कई चैनल के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है और हम सब जानते हैं कि इसमें पैसे जो, अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 20 रुपए की चीज बनती है और उसकी लागत प्रॉफिट लेके लेते हैं, हमारे पास आते आते इसकी वैल्यू 100 रुपए हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई चैनलों से गुजरता है। और जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी एक फैक्ट्री होगी जहां सामान बनेगा और यहाँ पे हम भी और आप भी एक कंज्यूमर होंगे, लेकिन बीच में कोई बिचौलिया यहाँ पे नहीं है। इसी इंडस्ट्री को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। ये सीधे आपके पास आएगा। और आइए आगे चल के देखते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, जितने हमारे नए लोग आए होंगे, कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये एक कंपनी सामान बनाती है, सबसे पहले उसका एडवर्टाइजिंग होता है, CNF के पास जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेल शॉप के पास जाता है और वहां से हम और आप जैसे कंज्यूमर लोग जाके सामान लेते हैं। एक एग्जाम्पल अगर पूछ रहे हैं कि अगर कोई सामान की अगर वैल्यू 100 रुपए है, एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 रुपए MRP है, तो हम सब जानते हैं कि क्या वो कंपनी में 100 रुपए का बना होगा? शायद सबका जवाब आएगा जी नहीं। अगर मैं बात करूं, एक सर्वे किया गया है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कास्ट और लागत प्रॉफिट जो भी हम समझ लें, पूरी कंपनी की उसकी लागत प्रॉफिट सब कुछ अगर अपना जोड़ ले तो मैक्सिमम 40 रुपए आती है। और 40 रुपए की चीज हम और आप कितने में खरीद रहे हैं? 100 रुपए में खरीद रहे हैं दोस्तों। इसीलिए देखिए ये कंज्यूमर कस्टमर का ये हाल है। ये जो पैसा है
ये 60% पैसा ये कहां जा रहा है? ये बीच के बिचौलियों के बीच में जा रहा है। यहां पे क्या होता है? यहाँ पे एडवर्टाइजिंग होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर इन लोगों का कमीशन होता है, और इनके पास 60% हमारी और आपकी मेहनत की कमाई का पैसा जाता है दोस्तों। अगर मैं वहीं पे बात करूं दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग में, यहां पे भी आपको एमआरपी 100 रुपए ही मिलेगी, यहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आपके 40 रुपए ही लगा, लेकिन यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये 100 रुपए जो हम एमआरपी देख रहे हैं, बीच का जो 60% पैसा है, ये हमारे और आप में क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ये पैसा हमारा था, हमारे और आप में बढ़ जाता है। आइए थोड़ा सा आगे ले चलते हैं कि कैसे। इसीलिए देखिए यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, कितना खुशहाल है, क्योंकि हमारा पैसा हमारे पास है। दोस्तों अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग को लगाएं कि यह सब सामान अगर हम पहले की तरह ही खरीदते रहेंगे तो केवल ये हमारा खर्चा ही बना रहेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और अगर यही सामान खरीदने से अगर हमारे घर में पैसा आने लगे तो कैसा लगेगा? हमें अपने आप से सोचना है कि जो आज हम सदियों से खरीद रहे हैं, हमारे पिताजी हमारे दादाजी भी खरीदते आए हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वही चीज आज मैं बताने जा रहा हूं कि यही अगर हमने सिस्टम को परिवर्तन किया तो हमारे घरों में भी खुशियां आने लगेंगी। कैसे आएंगी? जिस इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 100 से ज्यादा सालों से पूरी दुनिया में प्रेजेंट है और 170 से ज्यादा देशों में सक्सेसफुली रन कर रहा है, और 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेस बोला गया है दोस्तों इसे। और इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं फायदे की, तो इंडस्ट्री में इतने फायदे हैं, आप देख रहे होंगे आपके सामने की सबसे बड़ी बात कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारा। जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहता तो हमारा रिस्क नहीं रहता, कोई आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपका ऐसा नहीं है कि हमें पिछले जनरेशन से हम बिजनेस करते आ रहे हैं तभी हम कर पाएंगे। टाइम फ्रीडम है हमारे पास, हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज हम काम करेंगे और उसका फायदा हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा, और पार्ट टाइम में कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी पार्ट टाइम में शुरुआत किया था, मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। और अगर मैं बात करूं, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें खरीदने से हमारे घर में पैसा आने लगता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आज हमारे पास तकरीबन अभी रेंज हमारी और बढ़ गई, करीब 700 प्रोडक्ट आज की डेट में हो गए हमारे पास, और ये 14 कैटेगरी में हमारे पास प्रोडक्ट है। आपके सामने दिख रहे होंगे, इतनी कैटेगरी में हमारे पास तकरीबन 700 प्रोडक्ट है। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट नहीं है जितनी प्रोडक्ट हमारे पास है। मतलब गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपके पास जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज होते हैं आपके घरों में रोजमर्रा की, वो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ मैं डिमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ सच में इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। और अगर मैं बात करूं तो आपको अगर इसकी प्रोडक्ट की खासियत, मैंने कहा ना कि एक हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट पे सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है कि हाँ संतुष्ट है तो आप यूज करिए, नहीं संतुष्ट है तो मत यूज करिए। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूं, डेमो सेशन मैं आपको दिखाता हूं, और विद इन 1 सेकेंड बस मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। बस 1 सेकेंड दोस्तों, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। सबसे पहली चीज की, जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि हम डेली यूज की बात करें तो हमारे घरों में ब्रश यूज होता है। अब जैसे ब्रश क्या होता है कि अगर मैं सिंपल सा एक चीज दिखा रहा हूं, ये ब्रश हमारा इतना फ्लेक्सिबल है
कि अगर मैं बात करूं तो इसे इतना आप फोल्ड कर लेंगे कि आपके, अगर मैं बात करूं तो कोई भी दांत पे ये प्रेशर नहीं देता, सबसे बड़ी बात। और प्रेशर नहीं देता तो अब इसे क्या होगा कि आप चाहे जैसे आपके दांतों पे इसे यूज कर सकते हैं। और पूरे मार्केट में कोई भी अगर ब्रश इस तरह फोल्ड करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि वो टूट जाएगा। और इस फ्लेक्सी ब्रश के अगर मैं बात करूं, प्राइस की बात करूं, तो जो मार्केट में ओरल बी कंपनी का ब्रश आता है, मैंने एक बार देखा था, जिसका दाम करीब 80 रुपए से ज्यादा है, और उसको भी अगर इतना फोल्ड करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा वो टूट जाएगा दोस्तों। और इस तरह के ब्रश अगर आप यूज करते हैं तो आपके दांतों पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता, प्रेशर नहीं डालता। इसे हम बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद एक सिंपल सा मैं आपको दिखा रहा हूं आपके सामने, क्योंकि आज ये ऐसी चीज है कि जो आज हर घरों में, अगर मैं बात करूं तो हर घरों में कोई ना कोई दांत का पेशेंट होता जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम जो इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के जो पेस्ट करते हैं, उन पेस्ट की सच्चाई क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अभी देखिए ये बाहर का एक अदर कंपनी का पेस्ट है, इसको हम लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसकी मात्रा हम लेते हैं। इसके बाद देखिए ये भी एक अच्छी कंपनी का पेस्ट है, इसको भी हम लेते हैं। और ये सारे पेस्ट अपने आप को बताते हैं कि हम हर्बल है। मैं एक आपको सांकेतिक डेमो दिखा रहा हूं, ये डाबर रेड का पेस्ट है, ये भी है। इसके अलावा ये देखिए कोलगेट का वेद शक्ति है। इन सारे पेस्टों को हम थोड़ी थोड़ी मात्रा लेते हैं। और ये दंत कांति है, और ये दोस्तों हमारी कंपनी का हमारा पेस्ट है, फ्रेश मूवमेंट। एक मैं आपको सांकेतिक डेमो दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा, और इसमें जैसे हम लोग पहले हमारे यहाँ क्लीनर के रूप में आता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे टॉयलेट साफ करने के लिए आता है, एक तरह से नॉर्मल एक एसिड है। और हमारे दांतों में हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे दांतों में एक एंजाइम जैसे लार बनती है, वो हमेशा एंजाइम का काम करती है। और जब हम पेस्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन करता है आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। अभी देखिएगा इस सारे पेस्टों को आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। सारे पेस्टों में अगर मैं इसको 2-2 बूंद इसकी मैं मात्रा डाल रहा हूं, आपको भी क्लियर होगा, दिखेगा उस पर। मैं अपने पेस्ट में भी डाला। अभी दोस्तों आप दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा होगा हल्का सा, देख रहे होंगे सफेद सफेद चीजें सारे पेस्टों पे दूध की तरह देख रहे हैं, दूध की तरह खोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने पेस्ट पे, तो अपने पेस्ट पे हमने कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। आपको देखिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है इस पेस्ट पे। लेकिन बाकी सारे पेस्टों पे अगर मैं आपको बात करूं तो देख रहे हैं ये दूध की तरह क्या है, सारे पेस्ट ये रिएक्शन कर रहे हैं और दूध की तरह खोलने लग रहे हैं। देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा एक सांकेतिक मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाया कि देख रहे हैं आपको सामने ये सारे पेस्ट क्या है, दूध की तरह खोलने लगे। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर मैं बात करूं तो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं कि जो आप यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके अलावा जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनसे और भी प्रोडक्ट का डेमो देख सकते हैं, और भी प्रोडक्ट के बारे में आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और वापस, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास करीब 700 प्रोडक्ट है, अगर इसका मैं आपको डेमो दिखाने लगूं तो शायद रात हो जाएगी। अभी अगर मैं आगे ले चलूं आपको दोस्तों दिखाऊं, तो जो अब इतने अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं, अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा सा आगे ले चले। तो सबसे पहला जो फायदा मिलेगा आपको, कि आपको यहाँ पे मिलेगा 100% संतुष्टि की गारंटी, जो मैंने बताया। जैसे ही आप मोदी केयर से प्रोडक्ट शुरू करते हैं खरीदना, आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है डिस्काउंट, एमआरपी से मतलब छुटकारा। आज हम छोटी छोटी बचत करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी अगर मैं बात करूं तो दुकान पे जाते हैं, 2 रुपए छुड़ाने के लिए क्या करते हैं कि हम दुकानदार से बहस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले चीज मिलती है लाइफ लॉन्ग, आपको डिस्काउंट, एमआरपी से छुटकारा मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा मिलता है दोस्तों, हर प्रोडक्ट पे आपको ये लिखित गारंटी मिलती है कि आपको 100% संतुष्टि की गारंटी हम लिख के देते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट पे। जैसे अगर मैं बात करूं, इस पे भी हमारे कंपनी के ऑनर का इस पे साइन है, ये देखिए साइन आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह के हमारे क्या है कि हर प्रोडक्ट पे आपको ये लिखा मिलेगा, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और इसके बाद अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर यहां से आप सामान लेते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम ट्रेडिशनल मार्केट में अगर बात करें तो हमें क्या फायदा होता है। एक XYZ स्टोर है और एक हमारा मोदी केयर का स्टोर है।
अगर इन दोनों में अगर अंतर देखें तो सबसे बड़ी बात, पहले अपने आप से जज करिएगा, सवाल पूछिएगा कि हमें प्रोडक्ट चुनने की आजादी बाजार में भी है, और आपको मैं बता दूं कि आपको मोदी केयर में भी चुनने की आजादी। आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे प्रोडक्ट ले, कोई हमारा बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज कि डिस्काउंट की बात करें तो हमें मार्केट में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, हमें सामान मिलता है एमआरपी पे। लेकिन मोदी केयर में क्या मिलता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अप टू 20% पहली चीज आपको मिलती है, छूट पे सामान मिलता है। पहला फायदा होता है कि हमें डिस्काउंट मिलता है छूट पे, लगभग 20% की हमें बचत हो गई। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो वापसी की गारंटी शायद मार्केट में नहीं है। मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट हम लाते हैं, इसे हम घर में यूज कर लेंगे, हम इसे वापस नहीं कर सकते। लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट को आप 100% गारंटी के साथ वापस कर सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं मंथली ऑफर, जी हाँ, बाजार में कोई ऑफर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोदी केयर में तो आपको एवरी मंथ डिस्काउंट के अलावा 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 1000 पे 100 रुपए, 2000 पे 200, 3000 पे 300, 5000 पे 500 का सामान तकरीबन आपको फ्री मिलता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जैसे हम किसी दुकान से लॉयल्टी जैसी चीज हम किस 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल से लगातार जुड़े हैं, क्या वो दुकानदार हमें एक आध महीने का सामान फ्री देता है क्या? शायद नहीं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मोदी केयर में क्या है, ये बेनिफिट अगर आपने समझ लिया तो आप कभी जीवन में इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आपको साल भर में 21,000 रुपए तक का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। इसको हम आगे थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बताएंगे, लॉयल्टी जैसी बेनिफिट क्या होती है। बोनस, सब्सिडी, मार्केट में आज तक हमारे खाते में कभी पैसा नहीं आया है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोदी केयर में तो आपको 7 से 16% तक का आपको कैशबैक बोनस भी आता है। और अगर दोस्तों अगर बात करें तो देश विदेश की यात्रा हमें सामान इस्तेमाल करने से कभी नहीं मिली है, लेकिन आपको मोदी केयर में मिलती है। अभी आप मिलेंगे, सुनेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ऐसा कुछ नहीं संभव है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। अगर इसका एक निष्कर्ष निकालें तो देखें तो यहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन अगर बात करें अपने मोदी केयर में तो तकरीबन 60% की बचत हो रही है दोस्तों। 60% की बचत हो रही है केवल ग्राहक बनने पे। हमने अपने दुकान को चेंज किया और हमें 60% की बचत होने लगी। जो पैसा हमारा बिचौलियों के पास जा रहा था वो हमारा पैसा हमारे पास आने लगा। मैं अभी कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सामान्य ग्राहक बनने पे आपको ये फायदे मिलते हैं दोस्तों। अगर थोड़ा सा आगे आपको डिटेल में दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे, इसीलिए कंज्यूमर यहाँ का कितना खुशहाल है। और अगर जो मैंने लॉयल्टी की बात की, अगर इस लॉयल्टी की बात करें तो एक अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं, अगर आप 2000 रुपए से लेकर 7000 रुपए के बीच का प्रोडक्ट लेते हैं, 6 महीने लगातार आपने लिया, तो 7वें महीने में जो भी एवरेज आएगा उसका प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। समझ रहे हैं कि अगर हमने अपने यहां से स्टोर से 6 महीने लगातार सामान लिया तो 7वें महीने के आपके घर का सामान फ्री आपका। और अगर आपने यही एवरेज 12 महीने बना लिया तो 13वें महीने में जस्ट डबल आपको 2 बार आपको फ्री मिलता है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं 1 साल में आपको 3 बार प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। एक एग्जांपल के तहत अगर मैं बात करूं, आपने 5000 रुपए का सामान अगर 6 महीने लिया लगातार तो आपको 1 बार फ्री 5000 का सामान फ्री मिलेगा। और अगर 7वें से 12वें महीने फिर लगातार कंटिन्यू लिया तो आपको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, यानी 1 साल में आपको 15,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है 5,000 के एवरेज से। अगर ये 7,000 का एवरेज रहेगा तो आपको 21,000 का मिलेगा, 4,000 का रहेगा तो 12,000 का मिलेगा। जो भी आपका एवरेज आएगा उतने रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है दोस्तों। अगर मैंने कहा कि अगर आप 60,000 रुपए का सामान लेते हैं और 15,000 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है, तो इसको भी अगर देखेंगे तो 25% आपको लॉयल्टी फ्री मिल रही है, जिससे हम एक लॉयल ग्राहक बने रहेंगे। ये आपको हमारी कंपनी देती है कि आप हमारे लॉयल ग्राहक हैं। अगर थोड़ा सा आगे ले चले दोस्तों, यही सामान अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तहत दिखा रहा हूं कि हम सब कंज्यूमर है, हमारी बचत, छोटी सी बचत, अगर मैं बात करूं साल भर में अगर हमने एक छोटी सी बचत की तो मुझसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर यही सामान हमने 6 महीना लिया तो 30,000 रुपया लिया, तकरीबन 15,500 रुपए की बचत हो रही है। और अगर हमने 12 महीना लिया तो तकरीबन 36,500 रुपए की बचत हो रही है दोस्तों। 60,000 रुपया तो हमने पे किया,
और हमारा 36,000 रुपए हमारे पास कैशबैक के रूप में आ रहा है, फ्री प्रोडक्ट के रूप में, बोनस चेक के रूप में, डिस्काउंट, ये सब के ऑफर के उपरांत। तो समझ सकते हैं 60,000 रुपए वाला प्रोडक्ट आपको कितने रुपए का बना। अब हमें सोचना है, हमें निर्णय लेना है कि हमें परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एज ए ग्राहक हमें बनना चाहिए कि नहीं बनना। लेकिन दोस्तों, अगर मैंने बताया कि अगर यही काम, जैसे मैंने बेनिफिट ये लिया और मैंने अपने कुछ दोस्तों रिश्तेदारों को बताया और धीरे धीरे मेरे सपने पूरे होने लगे। अगर यही काम आपने, यही बेनिफिट अगर अपने जानने वाले, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को इतना फायदा आप दिलाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि हम नहीं दिलाएं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर यही आप करते हैं तो आपको हमारे समीर मोदी आजादी प्लान का, जैसा कि मैंने कहा, ये समीर सर ने, इनका एक मिशन है कि मुझे हर घर में आर्थिक आजादी पहुंचाना है। इस मिशन के तहत आपको तकरीबन 12 तरह की इनकम मिलती है दोस्तों, 12 तरह की आपको मिलती है। आप अगर यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट, रिटेल करते हैं प्रॉफिट, 7 से 16% का एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, टीम बोनस, बिल्डर बोनस, डायमंड बोनस, ट्रैवल फंड। आपको यही नहीं, यहाँ पे एक आपको लाइफ स्टाइल भी मिलती है। पैसे के साथ साथ आप देश विदेश की यात्रा भी करते हैं, साथ में आप अपनी ड्रीम कार भी लेते हैं, साथ में आप ड्रीम हाउस भी लेते हैं अपना, और लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस और ईयरली फाउंडर बोनस। अगर देखा जाए तो 12 तरह की इनकम दोस्तों आपके पास आती है। इसके बारे में डिटेल मैं एक बार आपको फिर कहूंगा कि जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे जरूर बैठ के आप इसके बारे में डिटेल आप समझ सकते हैं। मैंने कहा आपको एक व्यू दिया है, आपके एक माइंड ओपनिंग का दिया कि कैसे हम यहाँ पे लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा आगे अगर मैं आपको ले चलूं तो दोस्तों, ये एक्यूमुलेटिव प्लान है। आपका हर महीने का जो बिजनेस होगा वो जुड़ता जाएगा, कभी जीरो नहीं होगा। मतलब जो आज हमने काम किया उसका पैसा तो हमें मिला, अगले महीने काम किया हमने तो अगले महीने का तो मिलेगा, साथ में पिछले महीने का भी हमारा जुड़ के हमारा परसेंटेज क्या बढ़ाता है। तो जिससे हम क्या होगा, 7 से 16% जो हमारा है ये बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, हमें अचीव करने में बहुत आसानी रहेगी। ओनली प्रमोशन नो डिमोशन। कभी आप 16% अगर पहुंच गए तो लाइफ टाइम के लिए पहुंच गए, उसके बाद आप कभी नीचे नहीं आएंगे। और 16% का अगर मैं एक एग्जांपल दोस्तों बताऊं, अगर मान लीजिए आपने 2000 पॉइंट का सामान लिया तो 2000 पॉइंट का 16% आपको केवल कैशबैक, अगर मैं बात करूं तो 320 रुपए आपके पास कैशबैक आ रहा है। बाकी डिस्काउंट ऑफर सारी चीजें छोड़ दीजिए। तो इतना बड़ा बेनिफिट है एक बार अगर हमने पहुंच गया। अगर मैं थोड़ा सा आगे आपको ले चलूं तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है। इसके अलावा डायरेक्टर बोनस के बाद आपको 15% का टीम बोनस मिलता है जब आप टीम बनाते हैं, बिल्डर बोनस मिलता है। ये सब सारी चीजों के अलावा मैंने जो कहा, यहाँ पे एक आपको लाइफ स्टाइल भी मिलती है, जैसे ट्रैवल फंड मिलता है आपको, देश विदेश की यात्रा। जैसे अभी हमारे बीच में कई सारे लोग नहीं दोस्तों, करीब 7,000 लोग हमारे थाईलैंड की यात्रा पे जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही आप आते हैं और आप अपने एक लोगों को आगे बढ़ाते हैं तो आपको ट्रैवल फंड मिलता है। जैसे ही आप कार फंड, जैसे ही आते हैं और आपने अपने 3 लोगों की मदद की और 3 लोगों को डायरेक्टर बना देते हैं, 16% पे ला देते हैं, तो आपको कार फंड भी मिलने लगता है और वो भी लग्जरी कार आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 6 लोगों की लाइफ में परिवर्तन करते हैं और 6 लोगों को आपने, मात्र 6 लोगों को अगर आपने अपनी तरह आगे बढ़ाया और उनको डायरेक्टर बना दिया, तो आपको ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सब सारी चीजें इनकम मिलती है दोस्तों। यही निर्णय मैंने कहा कि आज से कुछ साल पहले मैंने लिया था। अब निर्णय आपके हाथ में है कि हमें लेना चाहिए कि नहीं ले चाहिए। एक छोटी सी शुरुआत मैंने किया था और धीरे धीरे आज मेरे बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आज तकरीबन करीब 8 बार मैं विदेश जा चुका हूं इस मोदी केयर से, अपनी वाइफ के साथ जा चुका हूं। मुझे पहली गाड़ी स्कोडा रैपिड मिली थी मुझे मोदी केयर से। बहुत सामान्य परिवार से दोस्तों, एक सामान्य सी नौकरी करता था बैंकिंग सेक्टर में। कभी सपने, मतलब कहते ना कि जो सारे सपने मैंने देखे तो सारे सपने खत्म हो चुके थे, लेकिन एक ऐसा भगवान का, ईश्वर का दूत आया और जिसने हमें मदद की, हमें बताया इसके बारे में और हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। और वो सारे सपने जो मैंने, कहते ना कि जो हमने सपने देखने की उम्र थी जब पढ़ाई एजुकेशन के दौरान देखे थे, वो सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। आज मैंने पहली कार ली, उसके बाद मुझे दूसरी कार XUV 500 मिली इस लॉकडाउन के जैसे पीरियड में भी। आज मैं खुद के अपने मकान में रह रहा हूँ जिसकी EMI मैं मोदी केयर से पे करता हूँ, हाउस फंड से। ये सब कुछ आपके जीवन में आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं,
अगर इस बिजनेस को आप ना करेंगे तो जैसी आपकी लाइफ है वैसी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने यस कर दिया तो आपके पास ये सब कुछ हो सकता है, हैंडसम अर्निंग, फॉरेन ट्रिप, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिकॉग्निशन, बहुत मान सम्मान, बहुत सारे लोगों की मदद, ये सब कुछ आपकी एक हाथ से हो सकता है दोस्तों। निर्णय आपके हाथ में है, सोचना आपके साथ है। और लास्ट में 3 क्वेश्चन, अगर मोदी केयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये अपने आप से सवाल पूछना है दोस्तों। और मैं इसी के बीच में आपके पास, हमारे समीर मोदी सर कहते हैं कि अगर आप 1 कदम लेते हैं तो मैं आपके साथ 2 कदम लेने के लिए तैयार हूं। और इनका एक मिशन है कि मैं तब तक नहीं रेस्ट लूंगा जब तक पूरे हिंदुस्तान में हर घर में मैं आजादी नहीं पहुंचा पाऊं। हर इंडियंस को मैं जब तक आजाद नहीं कर दूंगा, आजाद मतलब आर्थिक रूप से आजाद, पैसे से आजाद, कि जिस चीज में हम हाथ रख दें वो चीज हमारी हो, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। इतने बड़े मिशन के साथ दोस्तों समीर सर हमारे लगे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो मैं आपके बीच में एक और हमारी टीम की बहुत ही होनहार लेडी है, मैं उनसे मिलवाना चाहूंगा, जिन्होंने भी आज से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाया और आज वो एक अच्छी लाइफ जी रही हैं। हमारे बीच में रामेश्वरी केसरी जी हैं इलाहाबाद से, और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में अपने बारे में बताएं। उसके बाद मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आज उनका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और जो आज लाखों लोगों के आइडियल है। मैं उनसे भी मिलवाऊंगा दोस्तों। पहले मैं सुनता हूं रामेश्वरी जी को। रामेश्वरी जी प्लीज। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एंड थैंक यू दिनेश सर जो मुझे ये मौका दिया। दोस्तों बात करूं मैं अपनी, तो मैं प्रयागराज से हूं और बीएचयू की पढ़ाई के बाद सीधे गवर्नमेंट जॉब में आ गई, और कुछ हेल्थ चैलेंजेस के कारण उस जॉब से मुझे स्किप करना पड़ा, और एज अ सेल्फ एम्प्लॉय फिर मैंने अपना पार्लर डाला, लेकिन पार्लर की इनकम से सेटिस्फाइड भी नहीं हुई और अपने हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रही थी। उसी दौरान मुझे मोदी केयर के सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी मिली, और मैं परमात्मा का लाख लाख शुक्र गुजार हूँ कि मुझे वो सप्लीमेंट्स और वो कॉन्सेप्ट उस दिन समझने के लिए मुझे ऐसी बौद्धिक क्षमता दी, और मैंने तुरंत ही उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए हाँ कर दिया। और दोस्तों विद इन कुछ महीने में मैं अपने हेल्थ चैलेंजेस, जिसको मैं अपने 23 साल की उम्र से फेस कर रही थी, उसे मैंने कुछ ही महीने में सरवाइव किया। ना सिर्फ खुद ठीक हुई, बल्कि मैं बताऊं दोस्तों, मेरे बुजुर्ग पिताजी जो पैरालिसिस से जूझ रहे थे, उनको भी मोदी केयर के सप्लीमेंट से मैंने बिल्कुल ठीक किया। और वो दिन का दिन है दोस्तों, और आज का दिन है। मैंने फिर पलट के नहीं देखा कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, मैंने ये कभी नहीं सोचा, और सिर्फ लोगों को हेल्प करती गई, उनके हेल्थ चैलेंजेस, उनके हेल्थ इश्यूज से ठीक करती गई। और जिसका नतीजा हुआ दोस्तों कि कुछ ही सालों में मैं अपनी ड्रीम कार से चलती हूँ, और जैसा कि अभी सर ने बताया कि कई सारे फॉरेन टूर्स, तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है। मैंने इस मोदी केयर सिस्टम से बहुत सारे फॉरेन टूर्स लिए और बहुत सारे नेशनल टूर्स लिए। और दोस्तों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर कहते हैं ना, अपलाइन सक्सेस करता है, लाइफलाइन स्ट्रगल करता है। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, अभी आप मेरे अपलाइन से मिल रहे थे, अभी आप मेरे से मिल रहे हैं, और बहुत प्राउड होता है जब ये कहती हूँ कि इस बार करीबन बहुत सारी लेडीज मेरी टीम से 9 अप्रैल को थाईलैंड की फ्लाइट पे थाईलैंड एंजॉय करने जा रही है। तो दोस्तों ये है मोदी केयर का पावर, जो एक आम से खास बना दिया, मुझे व्यक्ति से व्यक्तित्व बना दिया। तो आज जिसने भी बुलाया है उनके साथ बैठिए जरूर और समझिए जरूर। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू दिनेश सर। ये थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच आपको। दोस्तों ऐसी बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं बस आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिसने आज हमारे जैसे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाया है, और जो आज कहते हैं ना कि मतलब वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व तो बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज उनकी छत्र छाया में, उनकी गाइडलाइंस में हम सब फल फूल रहे हैं। दोस्तों हमारे वो मेंटर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आपके बनास के रहने वाले हैं। उनको बुलाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बस एक ही चाहूंगा कि आपका लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे बड़े भाई मेंटर मिस्टर विंध्यवासिनी पांडे सर का, जो
जिनके आशीर्वचन से ही हम सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे सर अपने 2 शब्द हम सब लोगों को दें। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा दिनेश जी को, बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, प्लान दिखाया। क्योंकि देखिए मोदी केयर को मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कैसे देखते हो। मोदी केयर को आप एक प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम देखते हो, मोदी केयर को यदि कंपनी देखते हो, या मोदी केयर को आप ऐसी परमात्मा की ब्लेसिंग मानते हो कि ये परमपिता परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम विंध्यवासिनी पांडे है और मैं वाराणसी से हूं, और आज मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूं कि मुझे आपके बीच में इस बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने का मौका मिला है, जिस बिजनेस ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। जहां पर एक आम इंसान आकर के खास इंसान बन जाता है, जहां पर एक हाउस वाइफ आती है अपने पारिवारिक चैलेंजेस को फेस करते हुए, और एक दिन वो अपने हस्बैंड से भी ज्यादा पैसा कमाने लगती है, अपने सपने को पूरा करने लगती है। जहां पर हम जैसे एक आम इंसान आते हैं जो अपनी जिंदगी में फाइट कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, और आकर के आज एक कंफर्ट लाइफ जीने लगते हैं। दोस्तों ये सिस्टम की पावर है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, जो असंभव है उसको संभव करता है। मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज आप लोगों की घर घर तक पहुंच रही है, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहां पर हैं। ये सिस्टम की ताकत है दोस्तों, वरना मैं अपने घर से चाहे जितना भी चिल्लाऊं ना, कभी मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती, कभी मेरा चेहरा आप तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों सिस्टम की पावर है। आप अगर स्वयं काम करते हैं तो आपकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आपकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती। अगर आप अपने कदम से चलते हैं तो एक कदम चलेंगे तो एक कदम की दूरी तय करेंगे, लेकिन अगर आपने वही ताकत एक साइकिल के पैडल पे लगाया तो उतनी ही ताकत में आप 10 कदम की दूरी साइकिल से तय करेंगे। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो पूरी जिंदगी पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो जिंदगी में पैसा के लिए काम करते हैं। दूसरे वो हैं जो कुछ दिन तो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद पैसा उनके लिए काम करने लगता है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप किस कैटेगरी में रहना पसंद करेंगे, पहले कैटेगरी में जो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, या दूसरे कैटेगरी में जो कुछ दिन तो पैसे के लिए काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद पैसा उनके लिए काम करने लगता है? आप किस में रहना चाहेंगे? चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सेकंड कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जो आज आप काम कर रहे हैं, अगर वहां से जो आपके पास इनकम आ रही है, अगर वो इनकम आपके फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट से आ रही है, तो जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा। मैंने जिंदगी बिल्कुल वैसे है दोस्त, जैसे रेलवे स्टेशन पे वो नल लगी रहती है ना, ऐसे दबाओ तो पानी आता है, जैसे दबाना छोड़ दिया पानी आना बंद हो। जब तक टाइम दोगे, जब तक एनर्जी दोगे, जब तक काम करोगे, पैसा आएगा। जिस दिन टाइम एनर्जी देना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद। तो आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक सिस्टम बने, जो सिस्टम आपके लिए काम करे और आप वहां से पैसा कमाओ। और वो कैसे होगा? वो दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से होगा, अगर आप टाइम देते हैं और टाइम दे करके बदले में पैसा कमाते हैं, तो जब तक टाइम देंगे, जिस क्वालिटी के साथ टाइम देंगे, उतना पैसा आपके पास आएगा। जिस दिन टाइम नहीं देंगे, पैसा नहीं। बट अगर आप इस टाइम को देकर के एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और ये सिस्टम पैसा कमाता है, जैसे मान लो कि आपने कोई बिल्डिंग बना दिया और उस बिल्डिंग को बनाने में आपने टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, पैसा लगाया, लेकिन जब बिल्डिंग बन गया तो उसकी किराया आपके पास आ रहा है। कल आप अगर काम नहीं भी करोगे, बिल्डिंग बन चुकी है तो किराया आता रहेगा, आपके जाने के बाद आपके बच्चे के पास जाता रहेगा, आपके पास जनरेशन के पास जाता रहेगा। यानी अगर आपने अपना टाइम एनर्जी किसी सिस्टम को क्रिएट करने में लगाया, और यही बात बताने की कोशिश की जा रही है, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मैं इस बिजनेस के अंदर आया, ये मैं हूं और मेरी वाइफ है, ये मेरी शादी का फोटो है।
लोग कहते हैं इस बिजनेस में क्या आपको मिल जाएगा? सर दोस्त, किस कार से चलूंगा, कौन से बंगलों में रहोगे, कितना पैसा कमाओगे, कितने फॉरेन ट्रिप करोगे, ये बहुत छोटी चीज है दोस्त। आप इस बिजनेस में आकर के क्या बन जाते हो दोस्तों। आज ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ, एंड दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। और मैं आपको बड़े प्राइड के साथ और बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हुए बताना चाहता हूं, वो अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास थी है, वही अपॉर्चुनिटी आज आपके पास। आज आपका एक निर्णय आपको वहां खड़ा कर सकता है जहां मेरा कल का एक निर्णय मुझे यहां खड़ा किया है। ये आपकी चॉइस है दोस्त। इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया। लंदन गए हम लोग, वहां पे मोदी केयर ने सरकारी हेलीकॉप्टर वहां पे हायर किया, पूरे लंदन को हम लोग हेलीकॉप्टर से घूम करके आए। आज जिस गाड़ी से मैं चलता हूं उसका नाम मर्सिडीज बेंज ई क्लास है, जो एक आम इंसान जिंदगी में इमेजिन नहीं कर सकता था दोस्तों। आज बहुत बड़े बड़े मैगजीन्स फ्रंट कवरेज कर रहे हैं। जो इंसान जिसकी खुद की पहचान नहीं थी, जिसे अपने गांव में कोई नहीं जानता था, जिसको मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जाना जाने लगा। दोस्तों ये सब कुछ आपके लिए हो सकता है। ओवरसीज लुक एक मैगजीन है जो बहुत सारे कंट्रीज में जाती है, जिसमें फ्रंट कवरेज किया गया। आज बहुत जो इमेजिन भी नहीं कर सकता था मैं, वो सब कुछ मेरी जिंदगी में होने लगा। और दोस्तों ये सब कुछ आपकी जिंदगी में हो सकता है, ये सब कुछ आपके लाइफ में हो सकता है। ये जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ, बिकॉज आपके पास भी वही प्लेटफॉर्म है जो मेरे पास था। एबीपी न्यूज में कवर किया गया। और दोस्तों ये सब कुछ आपकी जिंदगी में हो सकता है। अभी दोस्तों आप लोग की ब्लेसिंग से, आप लोग की दुआओं से मैंने एक बुक लिखा जो कि अभी बेस्ट सेलर बुक बन गई है अमेज़न पे। इंडिया के 47 वर्ल्ड के 47 सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाली बुक के नंबर पे आ गई है। दोस्तों ये सब कुछ आपकी जिंदगी में हो सकता है, बशर्ते ये कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या सच में आप जिंदा हैं? जिंदा कौन है? जिंदा वो है जो आज की परिस्थितियों के विपरीत चलने को तैयार है। जिंदा वो है जो धारा के विपरीत चलने को तैयार है। मरी हुई मछलियां बहाव के साथ बहती हैं। दोस्तों जिंदा वो है जो बहाव के विपरीत चलता है। एक इंसान है जो स्वीकार कर लेता है अपनी परिस्थितियों को, ये परिस्थिति मेरी जो भी है उसको स्वीकार कर लिया है। एक साधा इंसान है जो परिस्थिति को अस्वीकार करता है और बोलता है कि नहीं, मैं इन सबको बदल सकता हूं। जिंदा वो है जो खुद से प्यार करता है दोस्तों। जिंदा वो है जो अपनी माता पिता से प्यार करता है, जो अपनी माता पिता के उन सपनों को जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे, जो उस सपनों की छवि जो आप में अंदर देखते हैं, वो उसके बारे में वो सोचता है दोस्तों। जिंदा वो है जो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता है दोस्तों, कि जो दर्द, जो कष्ट, जो पीड़ा, जो परेशानी मुझे मिली है, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा, मैं अपने परिवार को नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों अगर आप जिंदा हैं और आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, पत्नी को प्यार करते हैं, तो आपको पैसे से भी प्यार करना चाहिए। क्योंकि आज जिंदगी में बहुत कुछ जो भी आप चाहते हैं उसका माध्यम पैसा है। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन आज पैसा बहुत कुछ है। तो दोस्तों ये आपको डिसीजन लेना होगा, ये आपको निर्णय लेना होगा कि आप जिस परिस्थिति में आज हैं उसी परिस्थिति में रहेंगे या आप इस परिस्थिति को अस्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि आप जो कुछ भी है अपने निर्णयों के परिणाम है। आपने अपने आसपास किसी ऐसे लड़के को देखा है जो पढ़ने में बहुत सिंसियर है, वो 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ाई करता है। क्यों पढ़ाई करता है? रात रात दिन, जब और बच्चे पिक्चर देख रहे होते हैं, और बच्चे घूम रहे होते हैं, और बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, बर्थडे मना रहे होते हैं, मैरिज एनिवर्सरी बना रहे होते हैं अंकल का आंटी का, वो क्यों पढ़ाई कर रहे होते हैं? उस बच्चे के पास उस 5 साल बाद की छवि होती है
मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, एक छवि उनके माइंड में होती है। दोस्तों अगर एक छोटे बच्चा 6 साल बाद सोच करके आज अपने सारे सुख को, आज की अपनी चॉइसेस को अगर वो त्याग कर सकता है, तो दोस्तों आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आज आप कुछ ऐसे कार्य नहीं कर सकते जिससे आज के 4 साल बाद आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाए। ये आपको निर्णय लेना होगा दोस्तों, क्योंकि आपका निर्णय ही आपको बाहर बनाता है। जो कुछ भी आप हैं अपने निर्णय के परिणाम है। तो दोस्तों आपको निर्णय लेना होगा, और निर्णय लेने के बाद आपको एक्शन करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी किस्मत, आपका भाग्य कुछ भी नहीं है। ये आपका किस्मत और आपका भाग्य आपके डिसीजन और आपके एक्शन का परिणाम है, आपके कर्मों का परिणाम है। जैसे पानी को अगर 100 डिग्री सी तक गर्म कर देते हैं तो दोस्तों वो भाप बन जाता है। अगर उसी पानी को अगर -4 डिग्री सी टेम्परेचर तक ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा। पानी का जो डेस्टिनी है, पानी का जो भाग्य है, वो हमारा कर्म निर्धारित करता है। हम उसे गर्म करते हैं या हम उसे ठंडा करते हैं, और किस लेवल तक गर्म करते हैं, किस लेवल तक ठंडा करते हैं। दोस्तों हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। हमारी जिंदगी में जो परिणाम हमारे पास है, वो परिणाम हमारे निर्णयों के परिणाम है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि आप निर्णय 2 तरीके से लेते हैं, एक निर्णय लेकर लेते हैं और एक निर्णय नहीं लेकर लेते हैं। अगर आप निर्णय लेते हैं सुबह सुबह टहलने का, हेल्दी होने का निर्णय लेते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं तो भी एक निर्णय होता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिसीजन लें, आप निर्णय लें। आप डिसीजन लें, आप निर्णय लें, क्योंकि ये मौका आपके पास है जो मौका हमारे पास पहले था। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको सही निर्णय लेने में मदद करे। क्योंकि दोस्तों अक्सर मैं कहता हूं ना कि अक्सर समझदार और बुद्धिमान लोगों को यह बिजनेस समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक आप निर्णय लेंगे नहीं, जब तक आप डिसीजन लेंगे नहीं, तब तक आप एक डिसीजन लेकर के जो चल रहे चलते रहेंगे उसके साथ। और वो निर्णय लेना क्या है कि आपको इस बिजनेस को स्टार्टअप लेना है। जो आपको ले आया, इस मीटिंग में बैठाया है, उससे मिलिए, उससे बात करिए, कैसे आप शुरू कर सकते हैं उनसे पूछिए। वो आपको गाइड करने को तैयार है, आपको रास्ता दिखाने को तैयार है। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति था, वो भगवान को बड़ी पूजा पाठ करता था, बहुत भगवान को मानता था। एक दिन ईश्वर से उसने बोला, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी 10 लाख की लॉटरी खोल दो। तो लॉटरी नहीं खुली तो बंदा बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि उस पर कुछ पूजा पाठ में कमी हो, तो उसने पूजा पाठ और अच्छे से करने लगा, वो ध्यान और करने लगा, अगरबत्ती जलाने लगा, फिर नहीं खुली। फिर उसने कुछ भगवान मेरी लॉटरी बढ़ा दे, लॉटरी खोल दो। अब उसके बाद नहीं खुला तो फिर उसने और मिठाई चढ़ाने लगा, 1 किलो जो है, 2.25 किलो, 5.25 किलो ऐसे चढ़ाने लगा, पूजा पाठ करने लगा। और करते 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 उसने बोला, भगवान अब तो खोलना ही पड़ेगा, खाना पीना अन्न जल सब त्याग। तो भगवान के पास पहुंच गया। जब भगवान के पास पहुंचा तो भगवान की आंखों में आंसू थे, भगवान बहुत परेशान थे। आप में से कोई बता सकता है कि भगवान क्यों परेशान थे, भगवान की आंखों में क्यों आंसू थे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्यों परेशान थे भगवान? भगवान इसलिए परेशान थे क्योंकि भगवान उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। भगवान उसकी लॉटरी खोलना भी चाहते थे। भगवान ने बोला, भाई तू लॉटरी खरीद तो लिया होता, लॉटरी की टिकट तो ले लिया होता, मैं कैसे खोलूं? दोस्तों भगवान आपके घर में आके पैसा नहीं गिराएगा, आपको अमीर नहीं बनाएगा। 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि आज के 20-22 साल पहले मैंने इस मोदी के बिजनेस को रिजेक्ट कर दिया होता, मैंने इसे ज्वाइन नहीं किया होता, तो मैं एक मामूली टीचर होता। आप कल्पना करके सोचिए, दिनेश यादव जी उसी मेटलाइफ में नौकरी कर रहे होते, निर्णय नहीं लिए होते, इनके साथ के बहुत सारे दोस्त आज भी होंगे जो उसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, तो शायद आज दिनेश यादव जी यहां नहीं होते। रामेश्वरी जी ने अगर हाउस वाइफ बनकर के अपना सिर्फ पार्लर चलाने का निर्णय लिया होता, मोदी के रहने के बाद भी निर्णय नहीं ली होती, तो आज इतने लोगों को लेकर के जो फॉरेन ट्रिप जाने का जो प्राइडली बोल रही थी, शायद ये कभी नहीं बोल पाते। दोस्तों चॉइस इज योर, लाइफ इज योर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट टू दिनेश जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपको। और अपने सच में दोस्तों ये निर्णय का ही परिणाम है, और सर ने हम लोगों को भी निर्णय लेने में मदद की और हमने निर्णय लिया और आज यहाँ पे आपके सामने है। और आपसे भी यही कहेंगे कि जरूर एक बार आप इसे, जिन्होंने बुलाया है उनसे बैठ के सुनिए, समझिए और निर्णय लीजिए, और फिर आगे हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके सपोर्ट में हैं, हम आप सब आपकी मदद करेंगे और ऐसे ही हम कंटिन्यू लगातार आपसे मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, और यहीं पे हम लोग मीटिंग को क्लोज करते हैं।